When I was growing up, उस टाइम ना होटल्स बहुत कम होते थे. Like, तब ना 5 स्टार होटल का बड़ा चार्म होता था. लाइक 5 स्टार होटल हमने मेनली बाहर से ही देखे हुए थे. किसी दूर के अमीर कजन की शादी हो तो तभी कभी देख लिया, बट अदरवाइज नहीं देखे हुए थे. सो आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम that someday I will be able to afford a vacation at a 5 star hotel. And a few years ago, this happened. We went to a 5 star hotel in Goa and we checked in. And I realized that when you're middle class and staying at a 5 star hotel, more than the staff, you are under pressure to impress. You're always conscious, do I look rich enough to afford this? Do I sound rich enough to afford this? And as a couple, you're telling each other, if you see a celebrity, don't get too excited. कि सोनल वो देखो देख आलोकनाथ. You have to be cool, yeah, Alok. But if you don't give it away, your kids give it away. Like we entered the hotel and my son started, पापा वो देखो फुहारा लगा हुआ है. And once the staff figures out that you are middle class, they start playing around with you. They'll tell you things that you can't understand at all. Sir, the tea will be served at the parapet. Parapet क्या होता है? We don't know, right? But we are like, yeah, I will be there at the parapet. फिर हम गूगल पे ढूंढ रहे थे, पैरापेट देख तो सही है क्या? One thing I didn't like was that as soon as you start feeling at home, they come in and clean your room. We were traveling for, just for vacation, but there are people who travel for work, the business travelers. There's no problem with them, but there's a huge problem with their kids. Like my father used to travel a lot for work. So for a very long time, I believed that Taj and Oberoi's are soap brands. No, वो तो खुद बाहर निकले तो पता चला अच्छा इनके होटल भी आते हैं. It's so mind scarring because you are मतलब कितने साल यही सोचता था मैं कि मम्मी के पास सोइंग किट्स और शावर कैप ज्यादा है, साड़ियां कम है, यूज तो कभी करते नहीं. And the thing is, when and what I don't understand about these hotels is that they spend so much money. इतना पैसा चेपा होता है, कई जगह जरूरत नहीं वहां भी लगाया होता है. बाथरूम में कुंडी क्यों नहीं देते? You won't get it if you're staying alone in the room. हमारे कमरे में 2 बच्चे थे, आधा टाइम इसी टेंशन में पेट साफ हो जाता था कोई दरवाजा ही ना खोल दे. And when you order food at a 5 star hotel, that's the first time you realize that even the side servings are edible. अब बच्चों को समझा रहे हो तो बेटा ये पत्तों पे सॉस लगा के खा जा, बहुत स्वाद लगेगी. And the most important event for us at the hotel is the complimentary buffet breakfast. That's the time when 5-year-old Bittu to 65-year-old bubbly auntie, everybody turns into a Spartan. We eat like this is our last meal before hibernation. And even the stomach is psyched out. What kind of a diet is he going for? Is it the healthy diet or is it the I don't give a damn, I'm a Punjabi diet? Because you have fruit salad, followed by chole bhature, followed by muffins, croissant, boiled eggs, scrambled eggs, dosa, masala dosa, and your intestines are oh shit. Oh shit. And the lungs are saying, रुक बेटा अभी तो chilled juice के साथ चाय आएगी. हम अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशंस बनाते हैं. आई हैव बीन गिल्टी ऑफ इट ऑल्सो. एक रेजोल्यूशन हम सबने बनाया कि वेट लूज करना है. इस साल वेट कम करना ही करना है, फिट हो जाना है इस साल. क्योंकि हम सबको लगता है कि 15 किलो नीचे जाएं तो हमारे अंदर से शाहरुख खान निकलेगा ही निकलेगा. तो हम अपने अंदर के शाहरुख खान को जगाना चाहते हैं. तो हम बना लेते हैं प्रोग्राम कि यार इस साल वेट कम करना.
10-12 किलो कम से कम करना है। वो जो जीन्स पड़ी ना जो 2 इंच छोटी है वो पूरी आ जानी चाहिए इस साल। लाइक हमने ना कुछ कपड़े ऐसे भी खरीदे होते हैं, जैसे वो कैमोफ्लाज वाली टी शर्ट होती है, वो आर्मी फटीक वाली, जिसमें वो आर्मी वाले जो हैं वो झाड़ियों में दिखते नहीं है, पर उसमें भी हमारी तोंद 10 मीटर दूर से दिख रही होती है। लाइक पूरी कलेक्शन होती है हमारे पास कई बार। लाइक एक अलमारी होती है जिसमें हमने ऐसी कपड़े खरीद के रखे जो एक साइज छोटे थे और हमने जान के खरीदे थे, ताकि उन कपड़ों को देख के शायद शर्म से ही हम वेट लूज कर दें। और हम सब किया हमने कपड़ों में। लाइक हमने एक्सेल साइज में स्लिम फिट खरीदी होती हैं कमीजें, तो हम कहते हैं कि आप वेट लूज करना है, एंड वी गेट रेडी, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस। होता क्या है, ये वेट लॉस वाला रेजोल्यूशन हम बनाते हैं 15 दिसंबर को, 2 हफ्ते पहले। लाइक 1 जनवरी से वेट कम करना है। फिर हम सोचते हैं कि यार 1 जनवरी से वेट कम करना है, तो ऐसा है कि अगले 15 दिन है मेरे पास, उसके बाद तो मैंने खाना ही हेल्दी है, तो जितना अनहेल्दी खाना है अभी खा लेता हूँ, जितने पकवान है सबको एक आखिरी सलाम तो कर दे। तो हम खाते नहीं, उसके बाद हम ठूसते हैं। वी डोंट ईट, वी बिंज। हमें होता है सब खा लो, ये दोबारा तो खाना नहीं। हमने पिज्जा मंगवाया, साथ में एक पास्ता भी मंगवाया, आइसक्रीम मंगवाई, इसके ऊपर गुलाब जामुन भी रखते हैं। तो जब तक 31 दिसंबर आती है हमारा वेट ऑलरेडी 3 किलो और बढ़ चुका होता है, और जो तोंद है वो 1.5 इंच और बड़ी होती है, और जो शर्ट पहले टाइट थी अब उसके बटन जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है। उनको पता है कि थोड़ा सा भी और कुछ हुआ तो बेली बटन बाहर आ जाना है। तो वो चल रहा होता है। फिर आती है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को आदमी कहता है आज से डाइटिंग शुरू करनी है, पर तुम सुबह फ्रिज खोलते हो अपना, और फ्रिज के अंदर पड़े होते तुम्हारे 31 दिसंबर तक के पाप, तो सारा फैट वाला खाना पड़ा हुआ है। फिर आदमी कहता है यार माँ बाप ने सिखाया कि खाना फेंकना नहीं, तो खाने को डस्टबिन डालने से अच्छा है कि अपने अंदर डाल लेता हूँ। तो 2500 कैलोरी हम और ठूसते हैं। फिर आती है 2 जनवरी। 2 जनवरी को हमारा रिजॉल्व कड़ा होता है कि अब तो ध्यान करना ही करना है, और हम शुरू करते हैं जोश से। और प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता उस टाइम। क्योंकि डाइटिंग में ना वो तुमको बताते हैं, डाइटिंग में देयर इज अ प्रिंसिपल कि इफ यू आर डाइटिंग हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, लंच ओके करो और डिनर करो लाइट, राइट? कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर, डिनर लाइक अ पॉपर। बट हमारा जोश शुरू होता है सुबह 6 बजे। एप्पल आधा दे दे काट के, ब्लैक टी में कोई चीनी नहीं, कोई दूध मत डाल। लंच में ऐसा कर चने डाल दे, साथ में मेरे को सैलेड दे दे, मैं गर्म पानी के साथ ले लूंगा। जब तक बजते ना शाम के 7, हमारी आंतड़ियां हो चुकी होती इकट्ठी, और शक्ल हमारी जो है ना वो घुटनों तक लटक के पहुंची होती है, और हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं डिप्रेशन में, एंड वी आर लाइक यार जी क्यों रहे हैं हम, लेके आया यार एक गुलाब जामुन ले आ, उसके ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल दे, कल से देखेंगे कुछ और हेल्दी खा। फिर आ जाता हमारे पास किसी फैमिली फंक्शन का इनविटेशन कि पार्टी है, आपने आना। और इंडिया में आपको पता है कि पार्टी क्या होती है, बेसिकली ऑल सेलिब्रेशंस इज अराउंड फूड। पर तुम पूरा मन बना के जाते हो कि मैं आज पार्टी में कुछ नहीं खाना यार, अब शुरू करा है थोड़ा हेल्दी रहना। हाँ ऐसे पार्टी में जाऊंगा बट वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन ले लूंगा और सैलेड, और कुछ नहीं लेना। पर तुम वहाँ जाते हो, वहाँ जाते ही होस्ट अंकल आ जाते हैं आपके पास, बेटा आपने कुछ खाया? क्योंकि है क्या कि जो होस्ट होते हैं उनको लगता है कि मेरा फर्ज है कि जो जो आया उसको कम से कम 2,500 से 3,000 कैलोरीज ठुसवा के ही भेजूं। लाइक लोग नाराज हो जाते हैं अगर तुम उनकी पार्टी में जाके खाना ना खाओ। और ये लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं तुमको। लाइक तेरा दिल रखने के लिए मैं हार्ट अटैक ले लूंगा एक पैक भाई के नाम का। नाम तेरा पर लीवर तो मेरा है। और प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ होस्ट नहीं तुमको बोल रहे, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स भी उनके साथ अग्री करते हैं। आफ्टर ऑल उनको भी यार थोड़ी सी तो चाट खा लेते हैं यार, थोड़ा सा तो ले लेते हैं।
और चक्कर क्या है, हम सलमान खान तो है नहीं कि हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हमें टिके रहना, तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो फाइनली हमको आइडिया हो जाता है कि अब हम वेट तो कम कर नहीं सकते, तो हम दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। पहले एक बाल ऐसे कटवा लो जिससे पतले लगे, थोड़ा फेस कट ठीक आना चाहिए, सेल्फी ऐसे लो। लाइक कोई कहता है कि फोटो ले लेते, तो हम ऐसे हो जाते हैं। और फिर हम दूसरे काम करते हैं, हम डार्क कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं। यू कैन सी, थैंक यू। The schools have changed. I realized recently the schools have changed. Like, recently when I put my kid in, school, 4 years old, he started going to school. One day he came back and said, पापा कल ना अर्थ बन के जाना है। पहले तो साला समझ में ही नहीं आया। फिर हम गूगल पे ढूंढ रहे बच्चे को अर्थ कैसे बनाते हैं। साले में रुई भरे गत्ता लगाएं, क्या करना है इसका। हफ्ते बाद आया, कहता पापा कल ब्रिंजल बनना है। मैं कहा बेटा ग्रीन कलर की टोपी पहन ले, 15 मिनट सांस रोकेगा, पर्पल अपने आप हो जाएगा। Why do they do this? क्या लर्निंग है इसमें? लर्निंग तो पता नहीं कल को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो जाए बच्चों को। And once your kids start going to school, as a couple, it's very important that you are well coordinated. Like my son started going to school, उसको मैथ्स का पहली बार पेपर वापस मिला. I went back home and I said, कितने नंबर मिले? He said 40 out of 50. मैंने कहा very good. क्या लेके दूं तेरे को? That's when my wife walked in and said, मैं अभी डांट के हटी हूं, 10 नंबर कहाँ कटे? मैंने कहा मुझे फोन करके बता दिया कर कितने नंबर पे क्या रिएक्शन देना है. और है क्या कि जब आप एवरेज रहे हो पढ़ाई में, आपकी वाइफ एवरेज रही है पढ़ाई में, बच्चे एवरेज किड्स आर गुड न्यूज. बच्चा टॉपर वॉपर निकले तो आदमी को शक होता है, तो आदमी को टेंशन होनी चाहिए. और जब आप एवरेज रहे हो पढ़ाई में, तो बच्चों को पढ़ाई के नाम पे डांटने में कहीं ना कहीं आपका जमीर आपको धिक्कार रहा होता है. फिर आदमी कहता है जमीर की सुनूं कि वाइफ की. फिर आदमी कहता है जमीर तो चुपचाप सो जाएगा मेरे साथ रात को. एंड लेट मी टेल यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड टुडे, बाप दिल के बहुत अच्छे होते हैं. वो बच्चों को सिर्फ इसलिए डांटते हैं क्योंकि मां उंगली कर रही होती है. You know, this happens at our home all the time. You know, it's dinner time, it's 9:30 in the night and we are eating and that's when my wife will start, पता है इसका ना अभी होमवर्क नहीं हुआ, इसने टिफिन भी नहीं निकाला है अभी तक, पेंसिलें भी नहीं इसकी घड़ी हुई. I know she's not telling me, she wants me to scold the kid. She's basically saying Tommy hush. So डांटना पड़ता है. And the kids are so different. You know, my son, he didn't do his holiday homework. So, you know, my wife came to me and said, इसका holiday homework नहीं हुआ, सिर्फ 2 cursive writing करी है, पूरे 60 दिन निकल के बताओ इसका क्या करूं. Basically saying Tommy. So I went to my son and I said, बेटा क्या हुआ? And this is what he told me. He said, पापा 60 days के holidays थे. होमवर्क नहीं करके जाऊंगा ना तो 3 दिन मैम डांटेगी, चौथे दिन मैम क्लास में बिठा देगी. अब मैं 4 दिन खराब करूं कि 60 दिन? How do you fight with that logic? You know, I remember when we were kids, you know, we were even given formal education to tell lies. And I'll give you an example. Like till 3rd standard, the only excuse that I knew was stomachache. It was only when we started writing leave applications, I realized I could kill relatives also.
Then came the big challenge. The teacher came in and said, write 100 words about your father. And I hated my South Indian friend who used 50 words just in the name of his father. And my problem is, I belong to a Punjabi family. And in a Punjabi family, there's very limited communication between a father and a son. Like you go to your father with any problem, he doesn't give a fuck. You go to him, Papa, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को कॉमर्स लेनी है, तो पानी लेके 1 मिनट पहले. That's the way he would talk. 80% of my communication with my father was in 3 sentences. पेपर हो गए तेरे? पेपर मिल गए? जा 2 सोडे ले आओ. You know, you can't even convince him to buy you something. You go to him, पापा मेरे को आईफोन ले दो. क्यों? नोकिया आशा पे आवाज नहीं आती? नहीं पापा वो ना पकड़ा हुआ नहीं अच्छा लगता. बेटा पकड़ा हो तो तू भी नहीं अच्छा लगता था छोटा होता. हमने कौन सा बदल दिया? You know, that's the way we would talk. So I started writing my essay honestly. I wrote, I love my father because he gives me my pocket money. He loves me a lot, especially when he's drunk. My father is very strong. He has beaten all our neighbors. That's when teacher came to me and said, beta, this is not how you write the essay. And she gave me that guide. वो ना JPH की guide आती थी. Anybody know? Which has all the essays. And I read the essay about father. And I was like, shit. ये होता है father. हमारे घर पे कौन है फिर? Thank you so much. This is Amit Tandon. You've been a lovely audience. Thank you. Second vital information है पंजाबी यानी पंजाबी से ना आज भी चेक नहीं. हम हर जगह पहुंच जाते हैं. They're everywhere. But yes, you know, Punjabis generally considered very happy people. Some of us are so happy that we are even named happy. और लोगों को लगता है कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Let me tell you, we have problems, we just don't share it with people. Like one big problem every Punjabi has is कि weight कम नहीं हो रहा. मतलब जितना मर्जी फिट पंजाबी में छोटा सा हेमिस्फीयर निकला होता है आगे से. And I'll tell you why we have this problem. We have this problem because in a Punjabi family, if you've overeaten, the first advice you get at home is limca पी ले. जो कौन 400 कैलोरी सिर्फ इस चक्कर में पी जाती है कि डकार आ जाए. उसका वेट घंटा कम होना है. You know, I remember in 80s, cornflakes were just introduced in India. Cornflakes were introduced. And my grandfather came to know कि cornflakes खाने से ना weight कम होता है. So he got a pack of cornflakes home कि कल सुबह सारे जने cornflakes खाएंगे. So in the morning, cornflakes were served. The problem is cornflakes are not good in taste. तो हम खा नहीं पा रहे थे. But खाने जरूर थे क्योंकि weight कम करना था. तो मेरी दादी ने problem solve कर दी. उन्होंने बेसन में तल के खिला दिए. वेट कहां से कम होगा? हम साला विंग स्केल पे चढ़ते तब भी अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे. यार 4 किलो तो कपड़ों का ही होगा. मैं सुबह से पॉटी भी नहीं आई. Then the other problem we have is, you know, we loved liquor always, you know, we loved liquor, but जब से वाइन आई ना तब से हमें स्यापा पड़ गया कि साले इसको पीना कैसे है. इसके अंदर बर्फ डाले, पानी डाले, सोडा डाले, क्या करना है इसका. 15 साल पहले हमारे घर कोई वाइन की बोतल देगा, हमारे साथ छापा पड़ गया कि यार इसको खोले कैसे करें, क्योंकि ऊपर कॉर्क लगा हुआ था. तो पहले हमने चमचा मारा. अब चमचे से नहीं खुली, फिर हमने पेचकस से ट्राई किया. अब पेचकस मारा ना तो कॉर्क 4 टुकड़े होकर अंदर गिर गया. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पंजाबी भी और मिडिल क्लास भी, हमने कहा इसको छान के पिएंगे. फिर हमने पतीले में निकाली वाइन. That's when my father gave his first and last review of, you know, wine. He took 2 sips and said, "यार तू आरसी ले ले तो चढ़ती ही." लोग कहते हैं जी बच्चे होते हैं घर बनता. एक बच्चे से घर बनता है, 2 बच्चों से चिड़िया घर बनता है.
और 2 बच्चों वाला भी इतना धोखा है ना, इतना धोखा है। एक तो हमारे घर में ना पेरेंट्स जो वो बोल देते हैं ना, अगर तुम्हारे नहीं हुए ना तो ये बात सुन लो, एक तो ये जो पेरेंट्स या बुआ चाचा, होने वाले बुआ चाचा मासी जो बोलते हैं ना कि बच्चे कर लो, हम पाल लेंगे, कोई नहीं पालता तुम्हारे बच्चे। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों को खिलाते हैं। खिलाने और पालने में बहुत फर्क है। मैं फर्क बताता हूं। खिलाना मतलब ये जैसे उसने कुछ किया गंदा हो गया है जाके साथ। माँ बाप बच्चे के क्लीनर होते हैं, गंद वाला काम सारा तुम ही करोगे। और उसके बाद एक हो गया, उसके बाद कह रहे टाइम से दूसरा कर लो, फैमिली पूरी हो जाएगी। मैं कहा ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि फैमिली 2 से ही पूरी होती है? और ये ग्रंथ में अगर लिखा भी है तो ये पिछले 10 साल में ही चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो 8-8 में भी नहीं हो रही थी। पहले तो 8-8 में भी नहीं पूरी हो रही लोगों की फैमिली। 2 क्यों? फिर वो तुमको रीजन देते हैं, 2 बच्चों के रीजन देते हैं कि 2 बच्चे होते हैं ना तो शेयरिंग सीखते हैं। एक बच्चा होता है शेयरिंग, 2 बच्चे शेयरिंग सीखते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो एक ही चीज शेयर करते हैं, वो है माँ बाप का खून। और बाकी चीजें शेयर नहीं होती, बाकी चीजों का होता है बंटवारा। बंटवारे और शेयरिंग में फर्क होता है यार। मैं बताता हूं बंटवारा, पेप्सी की चाहे सारी गैस निकल जाए, 1-1 चम्मच मेजर करके डालते हैं, किसी को 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। हमारे घर में मैगी बनती है, वो कैंची से कटती है कि इसके पास ज्यादा चली गई। इसको शेयरिंग नहीं, इसको बंटवारा कहते हैं। ऐसे ऐसे रीजन दे रहे हैं 2 बच्चों के। अरे एक बाई चांस निकम्मा निकला तो दूसरा तो काम वाला निकलेगा। हमारे दोनों ही निकम्मे हैं, दोनों ही डिफेक्टिव पीस निकल गए। क्योंकि ये बच्चे नहीं काम करके राजी आजकल। ये बाहर मैराथन भाग के आ जाएंगे, इनको घर पे बोलो ना 1 गिलास पानी पिला दे, इनको मौत आ जाती है, इनको मौत आ जाती है। दूसरी बार याद करा दो, फिर ये आपस में शुरू हो जाए, सानवी तू दे देना, कल मैंने दिया था, बोला तेरे को है ना पापा ने, तू नहीं उठ के जा सकती। अब हम प्यास बूझ चुके, अब हम इनकी आपस में लड़ाई छुड़वा रहे हैं। कहां से काम कर लेंगे? काम ये धीले का काम करके रहते। कमरे इनके इतने गंदे होते हैं, मेरे बच्चों के कमरे इतने पहाड़ बने हुए कपड़ों के, सामान के, मतलब आदमी उठाता भी नहीं, पता नहीं नीचे से लाश वाश ना निकले कोई और, पता नहीं क्या क्या दबा के रखा है। हमारी काम वाली इतनी खुश है मेरे बच्चों से, क्योंकि वो पोछा लगाने जाती है, बस 2 स्क्वायर फुट ही जगह बची है कमरे में, हो गया भैया। ये नहीं कर रहे कमरे साफ। कमरे हमारे घर में तो कोई इनके कमरे में कोई डाका डालने आ जाए ना, वो 500 रुपए छोड़ जाएगा कि भैया पहले चोरी हो चुकी है। हालत तो यही कहती है कमरे की। हम इनके दोस्तों को घर पे बुलाते हैं, इसलिए नहीं कि हमको इनके दोस्त अच्छे, इसलिए बुलाते कि इसी बहाने ये कमरा साफ करेंगे, और नहीं कर रहे कमरे साफ। ये मैं मदर डॉटर देख रहा हूं, यही होता ना। अभी मैं और बातें बता रहा हूं, बता। फिर तीसरी चीज जो मुझे सबसे इरिटेटिंग लगती है, तुम बोला ना कि बच्चे हमारे लड़ते हैं, ये बहुत ज्यादा लड़ते हैं मेरे बच्चे, मतलब हद है चीपड़ापंती की। मेरा बेटा मेरी बेटी को पता क्या बोलता है कि जब तेरी शादी होगी ना तो मैं डोली के टाइम पता क्या गाना चलाऊंगा। हाँ, उनको पता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी। हद है घटियापन का घर पे। और वो कह रहे एक बार बड़े हो गए ना, अभी लड़ते हैं, बाद में इनका प्यार देख लो, घर छोड़ के चल, जान छिड़केंगे एक दूसरे पे जान। मैं कहा जब घर छोड़ के चले गए, उसके बाद की छिड़की हुई जान का मैं क्या करूं? जब मेरे साथ है तब तो जान ले रहे हैं मेरी, बाद का मेरे को क्या फर्क पड़ता? बाद में जैसे मर्जी रहे, जब तक मेरे साथ है तब तक तो सही नहीं। मतलब कभी कभी ये लड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये आपस में नहीं लड़ रहे, ये बाप की स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं कि देखें ये आदमी कहां फटेगा जाके। बहुत दुखी होता हूं मैं। मतलब होता क्या है, जैसे अब ऐसा नहीं कि दोनों बराबर का लड़ते हैं। जैसे एक तो वो लोग कहते हैं जी देखो 2 बच्चों से घर नहीं बनता, लोग कहते हैं जी बच्चे होते हैं घर बनता, एक बच्चे से घर बनता है, 2 बच्चों से चिड़ियाघर बनता है। क्योंकि ये बिहेव भी जानवरों की तरह कर रहे हैं।
और एक दूसरे को नाम भी जानवरों वाले ही बोल रहे हैं। सही में इतने जानवर डिस्कवरी चैनल पे नहीं है जितने ये एक दूसरे को बोल चुके हैं। और सिंपल जानवर भी नहीं बोलते, साथ में एक और एडजेक्टिव ऐड हो जाता है। वो उसको टकली गधी बोल रहा है, वो उसको पागल बंदर बोल रही है। मगर डिस्कवरी वाले भी सुन लेंगे, कहेंगे ये नई प्रजाति आई है। और ज्यादा कीड़ा मेरे बेटे को रहता है, वो हमेशा ढूंढ रहा है। वो अगर मेरी बेटी सानवी इस ने सानवी बैठी हुई टीवी देख रही, ये आएगा उसके बाल खींच जाएगा, वो संतरे का छिलका उसके आंखों में निचोड़ दिया, वाहियात काम। कॉकरोच उठाया उसकी गोदी में घेर दिया। और ऐसा नहीं कि वो सीधी है ना, जब वो अपने रूप पे आती है, ये 17 साल का लड़का ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया। क्योंकि देखो लड़कियां ना लात घूसों में बिलीव नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वायलेंट होती है। लात घूसे तो छोटे छोटे बम है, इनके पास होती है न्यूक्लियर मिसाइल, नाखून। ये देखो इसको पता है नाखून। किसी ने जिसने खाए हैं ना बहन के हाथ के नाखून, उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। वो ऐसे मारेगी, इतने क्यारियां बन जाती है मेरे बेटे के, पीठ पे मारेगी क्यारियां। मतलब तुम धान उगा दो उसमें, उस लेवल का हाल है। और पता क्या है, लात घूसोगी तो फिर भी 1-2 दिन में निकल जाते दर्द। जब ये खरोंचे पड़ी होती है ना, अगला 1.5 हफ्ता जब भी वो नहाएगा चीखे मारेगा, वो चलता। और हम सारी लाइफ चेंज हो जाती है, हर एक चीज की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मली कार में ब्लूटूथ वाला स्टीरियो फीचर है, बट अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, तो वो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। वो फसाद की जड़ है। हम जा रहे हैं बॉम्बे से नासिक जा रहे हैं, जैसे ही बैठे दोनों ने अपना कनेक्ट कर लिया, मेरा म्यूजिक चलेगा, मेरा म्यूजिक चलेगा, मेरा म्यूजिक। और मेरी बेटी का म्यूजिक का टेस्ट है, उसको अच्छे लगता है कोरियन पॉप सॉन्ग्स, शॉन मेंडिस के गाने, इंग्लिश गाने, वो सब उसका म्यूजिक का टेस्ट है। मेरे बेटे का म्यूजिक टेस्ट है जो सब सानवी को इरिटेट करे, वो वही गाने सुनता है। वो नॉर्मली इंसान आंखें बंद करके म्यूजिक एंजॉय करता है, ये म्यूजिक एंजॉय करता है आंखें खोल के, उसको चिढ़ा के कि ये देखिए गाना मैं चलाऊंगा, तेरे को गंदा लगता है, वो गाने चलाता है। तो अब लड़ाई शुरू हो गई, मेरा गाना मेरा गाना। हम जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है कि विद वन चाइल्ड यू बिकम अ पेरेंट, विद 2 चिल्ड्रन यू बिकम अ रेफरी। तो हम रेफरी का रोल में निभा रहे। मैंने कहा बेटा एक गाना तेरा, तेरा। शुरू हो गया, पहले सानवी का गाना चला, सानवी का खत्म हुआ, अमल का गाना चला, अमल का गाना खत्म हुआ, हमने कहा सानवी अब तेरी बारी। अमल कहता नहीं पापा, सानवी का गाना 4 मिनट का था, मेरा गाना 2 मिनट 37 सेकंड का था, अब मेरा एक और गाना 1 मिनट 23 सेकंड का चलेगा। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि इतनी मैथ्स तूने पढ़ाई में लगाई होती। पापा ने जो हमारे बारे में वीडियो बनाया वो तो आपने देख ही लिया है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब की बात हो रही है ना फालतू में। फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम कहां से आ इंस्टाग्राम गया? ज्यादा फेमस है। कुछ भी बोल रही है, तेरे को कैसे पता? यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस होते हैं ना ज्यादा तुम्हें? पता है। चल बाप को मत सिखा, मेरे को सब पता है, दिमाग मत खराब तुझे कर। सब- तुझे सब कुछ पापा पता है यार, यार। बकवास कर रही है। अरे यार तुम दोनों रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हें ना बोल के गलती कर ली मैंने। सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। and also press the bell icon for the notifications of his new videos. थैंक यू, Bye bye. 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 Bye. एवोकाडो तुम घर पे लाओ ना, तो एवोकाडो तुम अपने मूड के हिसाब से नहीं खाते, एवोकाडो तुम एवोकाडो के मूड के हिसाब से खाते हो। क्योंकि एवोकाडो का लाइफ साइकिल होता है कच्चा कच्चा कच्चा, पक गया, गल गया गल गया गल गया गल गया गल गया। पर लॉकडाउन में एक और काम हुआ। मेरे घर में प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे घर में ना मेरी वाइफ ने वेट लूज कर लिया। बहुत प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या उसने 14-15 किलो वेट लूज कर लिया। अब वो मुझे बोल रही है, शर्मिंदा भी कर रही है यार मुझे, बार बार शर्मिंदा कर। वन शी यूज्ड टू फॉलो दिस गाय कॉल्ड
मिलिंद सोमन, यार बड़ा परेशान हूं उस आदमी से मैं। एक तो वो कपड़े नहीं पहन रहा, और 55 की एज में इतना अच्छा नहीं दिखना होता है। वो रोज इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देता अपनी भागते हुए के। चक्कर क्या, वाइफ उसको फॉलो करती है, वो रोज उसको फोटो को देखेगी। तुमने मिलिंद सोमन को देखा है? मैं, तूने उसकी वाइफ को देखा है? देखो मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ सोचा। मैं उसको समझा, मेरे को कंपेयर करी। मैंने कहा जब तूने सामान ही सदर बाजार से खरीदा है, तो लुई विटो का थैला कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? बहुत पीछे पड़ी हो। और अब चक्कर क्या है, अब ना वेट लॉस ना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले क्या सिंपल होता था। पहले होता तब तला हुआ छोड़ दो, भागना शुरू कर दो, वेट लूज हो जाता था। आजकल प्रॉब्लम क्या, हर 6 महीने में तो वेट लॉस का सिलेबस चेंज हो जाता है। हर रोज नई डाइट आ गई, कभी कीटो डाइट आ गई, कभी जनरल मोटर्स डाइट आ गई, कभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई। और जब भी कोई डाइट आती है उसकी 6 महीने में रिसर्च आ जाती कि इस डाइट से तो कैंसर हो सकता है। मैं कहा ये दोनों रिसर्च तुम इकट्ठे नहीं कर सकते थे? अब मैं 2 ट्राई मार चुका हूं। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, 1.5 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। आई लॉस्ट 8 kgs। हाँ, 8 किलो मैंने वेट लूज करा प्रॉपर। हाँ, लग रहा है थोड़ा? थैंक यू। देखो इस पे ना थोड़ी तालियां जरूर बजती है। मैं बता, इंडिया में वेट लॉस को इतनी इज्जत मिल रही है ना, हमको लगता है कि जिसका वेट कम हो रहा है ना उसका आईक्यू बढ़ रहा है। तुमने देखा कितनी इज्जत मिलती है? हाँ, तुम्हारे घर में इसने, तुमने देखा तुम्हारे कजन ने हार्वर्ड से एमबीए करे, इसको छोड़ इसने 10 किलो वेट कम किया। अलग ही इज्जत मिलती है। 1.5 किलो, मैंने 1.5 महीने में 8 किलो वेट लूज किया। एंड इट वॉज लाइक अ लव स्टोरी बिटवीन मी एंड द वेइंग मशीन। वाइफ नहीं, 20 साल हो रहे हैं शादी को हमारी। ना जब आदमी वेट लूज कर रहा था तो हम अपने पार्टनर में, तू साइड पे पहले वेइंग मशीन को देख, रोज सुबह जाकर पहले वेइंग मशीन पे खड़े होना। एंड यू लाइक अरे 200 ग्राम और कम। फिर हम उतरते हैं, फिर हम टी शर्ट उतारते हैं, दोबारा चढ़े। 4-5 दिन मैंने ये करा। फिर मैंने वेइंग मशीन जो है वो लिविंग रूम से बाथरूम में ट्रांसफर कर ली। टी शर्ट पे क्यों रुके यार? वो बड़ा मजा आता है जब वो 10 ग्राम भी दिखता है ना कम हो गए। वो करा, बड़ा मजा आया। बट वो मैं सही बताऊं, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वेट बड़ा फ्रॉड है। तो मैंने बाद में दोबारा कम किया। वो मैं वेट लॉस हुआ मेरा, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट। एंड बिकॉज आई एम अ पंजाबी, वी नो ओनली वन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग, खाना। 1.5 महीने में वो वेट गया था, 15 दिन में वापस आया उसको। वो वेट ऐसे वापस आता जैसे मैदे का तुम्हारी कमर के लिए मन उदास हो गया कि भैया कहां गए थे। अब नहीं छोड़ना मैंने आप बहुत। और है क्या कि फिर सुपर फूड्स आ गए आजकल, ओट्स, किनोआ, चिया सीड्स, ये सारे सुपर फूड्स आप लोगों ने भी खरीदे होंगे। एंड आई रियलाइज कि सुपर फूड इसलिए नहीं है कि इनमें खाओ, इनमें कैलोरीज कम होती हैं। ये सुपर फूड्स इसलिए हैं क्योंकि इनका टेस्ट इतना वाहियात है। बंदा 2 चम्मच खाता है ना, आदमी की एपेटाइट ही मर जाती, छोड़ भूखा सो जाऊंगा। खा के देखो, टोफू ट्राई करा तुमने? टोफू खाओ, ऐसे लगता है पनीर और प्लास्टिक ने एक रात इकट्ठे गुजारी थी। उनके प्यार की निशानी लगता है टोफू। ब्रोकली की तो ना शक्ल देख के आदमी का वैसे ही मूड खराब हो जाता है। जैसे गोभी को बचपन में 2 बूंद जिंदगी के ना मिले हो ना, जो ब्रोकली देता ना, आदमी कहता पहले तो इसको ग्लूकोज चढ़ाया है।
हर चीज हमने सुपर फूड बना दी जो नहीं बिक रही, हर चीज को सुपर। मखाने, मखाने सुपर फूड हो गए आजकल। मखाने, जिनको मखाने नहीं पता, तुमने फॉक्सनट के नाम से 150 रुपए का पैकेट खरीदा हुआ 100 ग्राम का। मखानों को पहले इंडिया में कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता। मखाने हमारे घर में सिर्फ आते थे माता वैष्णो देवी के प्रसाद में। और वो भी लोग इसलिए देते कि लिफाफा भरा भरा लगे, खाता कोई नहीं था, सब निकाल के बादाम किशमिश खाते थे। मखानों को तो हम थर्मोकोल की तरह ट्रीट करते थे। अब सडनली मखाने सुपर फूड्स हो गए। मखानों के ऐड में मलाइका अरोड़ा आ रही है, मखानों में 6-6 फ्लेवर्स आ रहे हैं। ये मखाने भी कंफ्यूज हैं कि ये मैं KRK से SRK कब हो गया। पर ये लोग कुछ भी बेच रहे होंगे, बीज बेच रहे हैं यार। मैं किसानों को बेचो जाके, चिया सीड्स, पंपकिन सीड। मैं कहा सारे बीज अगर हम खा जाएंगे तो फसल कहां से उगाएंगे। फिर वो बीच में एक और फ्रॉड चला था, वो हेल्थी नमकीन, बेक्ड नमकीन आती है, तुम लोगों ने खरीदी होगी वो ट्रेड फेयर में, वो जो खाकी कलर के पैकेट मिलते हैं, जिसमें कहते हैं सर टेस्ट सेम है बट ये बेक्ड है तो इसमें कैलोरीज कम है, फ्राइड नहीं है। हम ले आते हैं एक पैकेट, पहले दिन हम चाय के साथ 2 चम्मच खा लेते हैं, फिर हमें समझ में आता टेस्ट देख सेम तो है नहीं, फिर भी पैसे लगे, अगले दिन हम फिर आधा चम्मच खा लेते हैं, फिर हम उसको रख देते हैं अलमारी में। 2-3 महीने बाद हम अलमारी खोल रहे होते हैं, उसमें से आवाज आती भैया मेरा क्या करना है। फिर हम वो पैकेट उठाते, उसको 2 मिनट देखते हैं, फिर हम अपनी काम वाली को दे देते हैं, तू ही पतली हो जा, हम तो हो नहीं रहे। वो पैकेट किसी के घर में खत्म नहीं हो रहा। फिर एक बाहर से आया हमारे पास सामान, एवोकाडो। एवोकाडो हमने ट्राई करा एवोकाडो। एक तो उसको फ्रूट क्यों कहते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ना उसकी शक्ल फ्रूट वाली है, ना उसका टेस्ट फ्रूट वाला है, वो हरा सा गूदा निकाल देते हैं हम उसमें से। और चक्कर क्या है, एवोकाडो का प्रॉब्लम पता क्या है, एवोकाडो तुम घर पे लाओ ना, तो एवोकाडो तुम अपने मूड के हिसाब से नहीं खाते, एवोकाडो तुम एवोकाडो के मूड के हिसाब से खाते। क्योंकि एवोकाडो का लाइफ साइकिल होता है कच्चा कच्चा कच्चा, पक गया, गल गया गल गया गल गया गल गया गल गया। एवोकाडो की जवानी सिर्फ 12 घंटे की है। अगर तुम्हारे सोते हुए निकल गए सुबह तक वो काला हो जाता है। मतलब एवोकाडो हम लाते हैं घर पे, काम पाल लेते हैं। रोज सुबह उठ के मियां बीवी ब्रश भी नहीं कर रहे, पहले एवोकाडो चेक करें, गल गया गल गया। यही चल रहा है हमारा। बॉलीवुड आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवी। डू यू गाइस वॉच बॉलीवुड मूवीज? बॉलीवुड मूवी जब तक सिर्फ देख रहे हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग व्हाट दे आर शोइंग यू इट बिकम्स अ ह्यूज इशू। जैसे मेरे माँ बाप मुझे मेला दिखाने कितने साल इसी चक्कर में ले जाते रहे कि कभी तो साला गुम होगा। फिर एक मूवी आई थी 7 खून माफ। यू गाइस हैव सीन 7 खून माफ? उसमें एक डायलॉग है कि हर औरत का एक बार जरूर मन करता है अपने हस्बैंड का मर्डर करे। इज इट ट्रू मैम? यू आर नॉट मैरिड? अच्छा, ओ सॉरी, थोड़ा अर्ली हो गया। आर यू गाइस? कोई शादीशुदा आया ही नहीं है। यू गाइस आर मैरिड? इज इट ट्रू? अरे वाह, तुम थोड़ा ध्यान रखो, है भी डॉक्टर ये तो। ध्यान रखो। लाइक मैं पूछता हूँ नॉर्मली लॉट ऑफ लेडीज से नो, सिर्फ एक बार नहीं करता। मैंने पिक्चर देखी, मेरी जान निकल गई। अगले दिन सुबह जाके सबसे पहले मैंने कुत्ता खरीदा।
जो खाता था पहले कुत्ते को खिलाता था। अभी 8वां कुत्ता चल रहा है। नहीं, बाकी 7 मरे नहीं, बट मेरी वाइफ के हाथ का कोई 4 दिन से ज्यादा खा नहीं पाता। मैं 16 सालों से खा रहा हूं। लोग कहते कुत्ते वफादार होते। Then there was this movie called जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट? Seen that movie? जिंदगी। उसमें दिखाते हैं खुले खेतों में खुली गाड़ी में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर फिर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं। वो बहुत से लोगों ने उसके बाद स्पेन जाना शुरू किया। माय पॉइंट इज, ये सब करने के लिए स्पेन जाने की क्या जरूरत है? ये तो तुम रोहतक में भी कर सकते हो। और जब तुम खुले खेतों में खुली गाड़ी में घूम रहे हो और अपने मन की कर रहे हो, तो तुम ऋतिक रोशन या फरहान अख्तर नहीं बनते, तुम बनते हो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता। एंड फाइनली द मूवी जिसने आदमियों की जिंदगी बहुत खराब करी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यू सीन डीडीएल? एक दिन मेरी वाइफ ने केबल पे देख ली शाम को मैं घर आया, द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज, यार तुम ना अब उतने रोमांटिक नहीं रहे। मैं, क्या हुआ? तुमने शाहरुख खान को देखा? मैं, देखो पहली बात, शाहरुख खान जिसके साथ रोमांटिक हो रहा है उसकी बीवी नहीं है। दूसरी बात, मुझे 5 करोड़ रुपए मिल रहे हो ना, मैं तेरे साथ क्या, तेरी मम्मी के साथ भी रोमांटिक है। कभी भी तुमको लाइफ में लगे ना कि तुम्हें बहुत पेशेंस है और तुम टेस्ट करना चाहो कि कितनी पेशेंस है, देन ट्राई बाइंग अ बिग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाइक अ टीवी और अ फ्रिज एट योर होम। क्योंकि एक तो सबको अपना ओपिनियन देना होता है। लाइक हमने अभी फ्रिज खरीदा था, तो फ्रिज के लिए सबको ओपिनियन देना है। जैसे मेरी दादी, और उनका ओपिनियन फ्रिज के बारे में नहीं है, उनका ओपिनियन हमारी जनरेशन के बारे में है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे टाइम में देखो कोई फ्रिज नहीं होता था। मतलब हमारे घड़े में पानी पीते थे, घड़े में ठंडा होता था पानी, कभी दूध नहीं खराब हुआ, कभी सब्जियां नहीं खराब हुई। एंड आई एम थिंकिंग, दादी, सबसे ज्यादा आपकी आइसक्रीम पड़ी होती है फ्रिज में। फिर फादर का ओपिनियन आता है कि कौन सी दुकान से खरीदो। सो इज लाइक, बेटा कहाँ तू दूर दूर जाएगा, ये शर्मा जी की दुकान से ले ले, जो गली के बाहर जाके है, संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी की बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरे फादर के साथ रोज सुबह सैर करने जाते हैं। और ये जो संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने खोली हुई है, ये बेसिकली उस कमरे में खोली है जो उनका किराए पे नहीं चल रहा था। और वहाँ पे 4 फ्रिज होते हैं, 4 या 5 फ्रिज होते हैं उनके पास। वो इतने पुराने फ्रिज हैं, तुम्हें देख के लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो की खुदाई में निकले होंगे। वो अपना चिपकाने में लगे हुए हैं। तो ये ले जाओ ब्लैक वाला। मैंने लाइक, अंकल ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है। नहीं होता था पहले, ब्लैक ही होता था। और उसमें तुम देखो ध्यान से, उसमें नीचे ना खुदा हुआ भी लिखा हुआ है, टिंकू लव्स बबली। और वो तुम तो चिपकाने में लगे हो। और तुम थोड़ा देखना शुरू करो कि चल मैं कहीं ऑनलाइन चेक करता हूँ, तो तुम फ्लिपकार्ट खोलो, फिर वो सेंटी शुरू हो जाएंगे। बेटा फ्लिपकार्ट में क्या देखा, तुमको कभी मिला हुआ है लोगों को? मेरे को तो पिछले 20 साल से जानता है। ये पता नहीं कब देके जाएंगे तेरे को फ्रिज। तू अभी बोल, मैं तेरे को आधे घंटे में घर रखवा दूंगा फ्रिज। फिर आदमी कहता है कि चलो एक बार थोड़ी कोई बड़ी दुकान देख लो, कोई ब्रांडेड स्टोर में भी चेक कर ले आदमी। अब बड़ी दुकान पे तुमको वैरायटी प्रोडक्ट्स की मिले ना मिले, सेल्समैन की बहुत वैरायटी मिलती है। एक तो तुमको मिलता है वो टेक्निकल वाला सेल्समैन, वो मतलब उसका नाम भी एकाग्रचित कटोच टाइप होता है कुछ। वो तुमको ऐसे ऐसे फीचर बताएगा, तुमको लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। वो आके तुमको बता रहा होगा, सर इसके अंदर ना एक माइक्रोचिप लगा हुआ है, और ये जो है ना, ये सेंस करता है कि अभी कंडेंसेशन लेवल कितना है रेफ्रिजरेटर का, और उस हिसाब से वो रियल टाइम बेसिस पे टेम्परेचर चेंज करता रहता है। तुम उसकी बात सुन रहे होते हो और सोच रहे होते कि यार तू इसरो में जाके सैटेलाइट क्यों नहीं बनाता? मतलब तूने पीएचडी करी क्या है रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि तुम तो खुद को थोड़ा सा ना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं खरीदने क्या आया हूँ, 2 दिन रुक मैं पढ़ के आता हूँ। फिर दूसरा जो सेल्समैन मिलता है तुमको, ये वो होता है स्टॉकर टाइप का। स्टॉकर टाइप सेल्समैन वो है जिसने 536 बार तेरे नाम देखी हुई है, तो तुम जैसे ही घुसते हो ये तुम्हारे पीछे पीछे चलता जाता है।
लेकिन तुम्हारे इतने पास चलता है कि तुम गर्दन पे ना उसकी सांसें फील कर सकते हो। कि आदमी को लगता है कि 1-1.5 सेंटीमीटर और पास आ गया ना तो मैं इसके साथ काटे नहीं कटते ये दिन ये रात वाले गाने पे डांस कर सकता हूँ। मतलब मैं इसके साथ टाइटैनिक का पोज बना सकता हूँ। मतलब अगर ये थोड़ा सा और पास आ जाए तो मेरी वाइफ को शायद शक हो जाए कि मेरी चॉइसेस तो नहीं बदल गई लाइफ में। फिर एक और ऑप्शन होती है तुम्हारे पास, एक बड़ी दुकान पे जाते हो जहां का दुकानदार दुखी है, वो ओनर है पर वो दुखी दुकानदार है। लाइक वो बेसिकली उसके साथ क्या हुआ है कि जो वो करना चाहता था उसको शायद लाइफ में किसी ने करने नहीं दिया, तो उसके आगे बढ़ा ही नहीं। लाइक उसने कस्टमर एज गॉड वाली किताब ही नहीं पढ़ी हुई। तुम अंदर घुसते हो तुम्हें अटेंड नहीं करता क्योंकि उसके साथ गलत हो चुका है। उसको लाइक उसको शायद लव मैरिज करनी थी पर उसके पापा ने कहा नहीं बेटा ये डॉली है ना, डॉली से शादी करो क्योंकि उसके पापा मुझे बहुत पसंद है। फिर शायद वो मतलब वो दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, शायद उसका कुछ पैशन था लाइफ में, वो सिंगर बनना चाहता था, फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर फिर उसके पापा ने कहा ना बेटा ये पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स किस लिए खोली है हमने, यहां बैठ। तो जब तुम जाते हो तुम अंदर घुसते हो, भैया फ्रिज वो पड़े हुए हैं 5-6 फीचर्स, ये ब्रोशर पड़े हुए हैं। लाइक वो तुमको कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है। उसका बेसिकली पर्पस ये है कि देखो मेरे को लाइफ में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो मैं तेरे को ऐसा क्यों दूं जो तुझे चाहिए। पर ऑनेस्टली 100 बात की एक बात, हर एक चीज की एक स्पेसिफिक जगह होती है। जैसे अगर तुमको खाना अच्छा खाना तो आंख बंद करके अपनी माँ के पास चले जाओ, खाना हमेशा परफेक्ट मिलेगा। अगर तुमको थोड़े उदास हो रहे हो, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा हंसना है, तो मेरे चैनल पे आके ट्राई करो, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर तुमको कुछ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो इधर उधर भागने की क्या जरूरत है, फ्लिपकार्ट पे जाओ ना, वहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट वीडियोस हैं, बाइंग गाइड्स हैं, उसके बाद कस्टमर रिव्यूज तक हैं। सब कुछ देख दाख के खरीदो। ऐसा नहीं कि कोई तुमको वहां कुछ चिपका रहा है सामान या कुछ और गलत बेचने की कोशिश कर रहा है। शांति से अपने हिसाब से अपना सामान खरीदो। परफेक्ट अप्लायंस खरीदने का परफेक्ट तरीका फ्लिपकार्ट। मैं पंजाब में पढ़ा हूं, मेरे दोस्त हैं जो लुधियाना रहते हैं, सब ब्रांडेड पहनते हैं, सब लुई विटॉन की बेल्ट पहनते हैं। लुई विटॉन की बेल्ट देखिए, एलवी होता है। अब इन सबके पेट निकल चुके हैं, तो एलवी धुन्नी में चुभ रहा है। When we moved to Bombay, we started going out clubbing. Problem is कि बॉम्बे में क्लबिंग comes under entertainment. In Delhi, clubbing comes under adventure sports. तुमको नहीं पता कहां से गोली आने वाली है। एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू विद गारंटी, किसी के लिए मरना बहुत आसान है, किसी के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल का। लाइक आई वॉन्ट टू हियर अ लव स्टोरी जहां हीर रांझा की शादी हो गई, रांझा 3rd एनिवर्सरी भूल गया। So I talked to my daughter. Now I understand what kind of boys teenage girls like, you know. So now I understand why I never had a girlfriend when I was a teenager. पेरेंट्स को पैसे खर्चवाना छोड़ो, उन पे पैसे खर्च करना पता कितना मुश्किल काम है। लाइक वी कांट इवन स्पेंड मनी ऑन देम। मतलब आई कांट बाय अ 3000 रुपी वैन यूजन शर्ट फॉर माई फादर। मैं ले जाऊं ना, ही विल बी लाइक इतने में पीटर इंग्लैंड की 4 आ जाती वैसे। अब पैसे डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते, राइट? बचपन की दोस्ती है। आदमी को लगता है शायद भूल गया होगा, उसको मेरा नाम दिखाई देगा तो याद आ जाएगा कि टंडन के पैसे देने, दे के खत्म करो, 2.5 लाख रुपए तो है। तो आई जस्ट नीड टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस। So to remind him of my existence, I started sending him good morning messages. सारा दिन गाना गा रहा, अपना टाइम आया। 4-5 दिन तो मैंने सुना, फिर मैंने उसको बिठाया, मैं कहा बात सुनो।
तू 4 बेडरूम के घर में रहता है बॉम्बे में, तेरे पास अपना कमरा है, तुम बड़ी गाड़ी में घूमते हो, तुम हर साल घूमने इंडिया से बाहर जाते हो, तो इस गाने में जिस टाइम की बात हो रही है ना, वो तेरा ऑलरेडी चल रहा है। गाना गाना है, तू गा, अपना टाइम निकल ना जाए। Have you realized politics काफी ज्यादा आजकल polarization हो गई है इंडिया में, right? You can't just be an Indian, you have to belong to a party these days, right? You say something about Kejriwal, people think ये बीजेपी का आदमी है. You say something about बीजेपी, लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का आदमी है, या तुम कांग्रेस के हो. You know they put those caps on you कि तुम एक के बारे में बोल रहे हो तो तुम दूसरी पार्टी को belong करते हो. Whereas you give your opinion as an Indian sometimes, and you know it's getting to a stage where you know slowly you'll have first name, second name and a third name. Like first name is like me, I'm Amit, okay? Second name is Tandon, which tells me what caste I belong to. There will be a third name which will tell you कि कौन सी पार्टी को support करता है. You know you'll get to that point where Amit Tandon कांग्रेसी, मनीष गुप्ता बीजेपी, अमर सिंह जो पैसे दे दे. You know, but we are getting there. And then recently this demonetization happened. How many of you support demonetization? Quite a few people support. Like I don't still have an opinion. I think 6 महीने बाद पता चलेगा क्या हुआ, right? और इकोनॉमी तो पता नहीं, पर हमारी वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव हो गई है उसकी वजह से, right? And the thing is, problem is that in a lot of cases the opinion on this policy depends upon whether you like a person or not, right? It's not based on the policy but on the basis of who took that policy decision. So people who love Modi love the decision, who hate him hate the decision. What has happened is कि मोदी कईयों का बेटा है और कईयों की बहू है, तो बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता. बेटा तो शराब पी के भी घर आ गया तो पेरेंट्स कहते हैं देख कितना स्ट्रेस हो रखा है बेचारे को. और बहू चाहे कमा भी ले और घर भी हैंडल कर ले तो कहते देख बच्चा अकेला छोड़ गई. यू नो, तो तुमने निकालनी गलती उस केस में. एंड फॉर वन पर्सन इज डेफिनेटली द बहू. फॉर अरविंद केजरीवाल, like Arvind Kejriwal was like quiet for 3 days after it. कि ये तो यार मेरे वाले पत्ते खेल गया, ये तो चीटिंग हो गई. It was almost like, you know, what happened around 10-15 years back when Indian team went to Pakistan. Second test match, पहले ओवर में इरफान पठान ने पेस बॉलिंग में स्विंग डाल के हैट्रिक ले लिया. एंड पाकिस्तान इज लाइक यार ये तो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, ये गलत हो गया. And the thing is, impacts are different. Like for me, this is what happened. Like my daughter has been, you know, keeping a lot of pocket money. She's been putting it together. तो 2-3 महीने पहले वो बैठी हुई अपना पॉकेट मनी गिन रही, 870-880 रुपए इकट्ठे हो रखे, एंड और सारी चिल्लर, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 के नोट. एंड आई वॉज पासिंग बाय, एंड आई बीइंग अ गुड फादर, आई वेंट टू हर एंड आई सेड, बेटा कहाँ चिल्लर इकट्ठी कर रही है, ये मुझे दे दे, मेरे से 1000 का नोट ले ले. उसके 2 महीने बाद 1000 का नोट 0 हो गया. उसका बाप से विश्वास उठ गया उसके बाद से. You know? Then the day this happened, demonetization, तो WhatsApp पे आना शुरू हुआ. और WhatsApp पे आया, and WhatsApp पे एक मैसेज तब आया था, I'm not sure whether you got it, where they said that you know, you should start telling the poor people कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं. Right? That message was out कि सब्जी वालों को बता दो, especially सब्जी वाला, everybody had written, because everybody wanted to say कि हम दिल के अच्छे हैं पर सिर्फ WhatsApp पे. And you know, I went to the market. मैं सब्जी वाले के पास गया and I told him कि भैया अब ना 500 और 1000 के नोट मत लेना, बंद हो गए. And he looked at me and he was like, तुमको हम गधे लगते हैं? तेरे को क्या लगता है व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है? तुम जैसे लोग आ रहे हैं ये सब बता रहे, वो पूरी बात तो सुनते नहीं है कि बैंक में डल रहे हैं ये नोट. तुम जैसे लोगों को हम 200-200 रुपए की सब्जी 500 में चिपका रहे हैं.
देन इन द मॉर्निंग द मेड केम, और मेड्स को तो सब पता होता है, दे नो एवरीथिंग. एंड शी केम टू माई वाइफ एंड शी वाज लाइक, बीबी जी आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए. और हमारा क्या है कि हम मिडिल क्लास है, तो हमें ना एजुकेशन मिलती कि मेड्स को मत बताओ घर पे कितने पैसे पड़े हैं. बिल्कुल. सो मेरी वाइफ, माई वाइफ इज लाइक, नहीं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, 2,500-3,000 रुपए पड़े होते हैं हमारे पास घर पे. अरे नहीं आपने लोगों से लेने होंगे कैश वैश. नहीं नहीं हमारे पास पैसे हैं ही नहीं. हमारी एजुकेशन है वो, मेड्स को मत बताओ पैसे हैं. सो यू नो शी इज आस्किंग अगेन एंड अगेन. फाइनली शी सेड, कोई पैसे नहीं आपके पास? नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं है. अच्छा मेरा 1.5 लाख रुपए फिर एडजस्ट करवा दोगे? And I think it's a very gutsy move from Modi, like, you know, very gutsy move, because he's taking on the people who voted him in power, the traders especially, right? Businessmen were the biggest lobby that were after them. And suddenly he's turned around and, you know, the businessmen are the worst affected. It's almost like this for businessmen कि जैसे आपने बच्चा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो IAS बना, हफ्ते बाद ही वापस आ गया, कहता पापा हमारा घर इलीगल बना हुआ है, तुड़वाना पड़ेगा. उनको समझ में नहीं आ रहा कि दुखी होए कि दे शुड बी प्राउड ऑफ हिम. एक मेरी और मेरी वाइफ की पहली मेजर लड़ाई हुई थी शादी के 1 महीने बाद, ताजमहल देखने से 2 घंटे पहले. एक हम आगरा गए हुए थे, रात रुके, सुबह उठे, गलती मेरी थी. नहीं ये तो जेन्युइनली मेरी थी, अब तो डिफॉल्ट से होती है. हुआ क्या कि जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो रोमांस में बता रहा हूं गलत चीज. पहला दिन शादी के बाद मॉर्निंग आई वोक अप बिफोर माई वाइफ एंड आई वोक अप एंड आई वाज लाइक, ही मेरी वाइफ का पहला दिन है इस घर में, इसको पहली चाय इस घर की मैं पिलाऊंगा. यू नो रोमांटिक. मैं उठा, मैंने चाय वाय बनाई, बिस्किट रखे, नमकीन रखी, फूल वूल रखे साथ में. फूल होते हैं नए घर में, ऐसा नहीं खरीद के लाया. मैं लेके गया, मैं उसको दी. शी टुक हर फर्स्ट सिप एंड शी इज लाइक, आह क्या चाय बनाते हो यार तुम, अब तो मैं अपने हाथ की पी ही नहीं सकती. 16 साल हो गए उस बात. चाय. तो हम आगरा गए, वहां रात रुके हुए थे, सुबह उठे. अब मैं पहले उठा, वाइफ सो रही थी, मैं गलती से अकेले की चाय बनाई और पी ली. टोल्ड यू गलती मेरी. मेरी वाइफ उठी, लाइक यार चाय. यार सॉरी मैं पी बैठा हूं, तेरे लिए बना देता हूं. कहती ना मेरे को तो वही वाली चाहिए. मैं यार वो तो पॉसिबल नहीं. कहती करो. अरे मैं यार लॉजिकल बात कर. तुम तो रहने दो लॉजिक, तुम बात सुनो. तुम उस दिन 3 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी, तुम्हारे वाला खाना खाया. तुम उस दिन 2 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी. लाइक लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई. लाइक हमने पूरा ताजमहल एक दूसरे से बात किए बगैर मुंह सड़ा के देखा, मुंह सड़ा के. लाइक इवन शाहजहां भी कब्र में बैठा हुआ सोच रहा होगा ये लोग तो डिजर्व भी नहीं करते, ऐसे इतना पैसा खर्च किया. बट अब चेंज हो गया. अब हो गए शादी को 16 साल. अब तो हमारा लड़ाई का टेम्पलेट है. अब तो टेम्पलेट है, हमको पता है 4 घंटे चलनी है. उसने ये बोलना, फिर मैंने ये बोलना, फिर उसने ये बोलना, मैंने ये बोलना. 15 मिनट लड़ाई चलेगी, फिर 4 घंटे बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाना. वी कम टू दैट पॉइंट. और है क्या कि लड़ाई होनी भी चाहिए, वंस इन अ वाइल होती रहनी चाहिए, काफी अच्छी होती घर के लिए. आई टेल यू हाउ. जब लड़ाई होती है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि हम 15 मिनट पहले एक दूसरे को सुनाते हैं कि तूने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया. हम नुक्स गिनाते हैं. उसके बाद हम 4 घंटे बात नहीं करते. पर जो 4 घंटे ना, अब हम पे प्रेशर है कि हम दूसरे जने को और पॉइंट्स ना दें. सो वी आर एट आवर बेस्ट बिहेवियर नाउ. दोनों अपने बेस्ट बिहेवियर. इस चक्कर में घर साफ हो जाता है क्योंकि दोनों तमीज लगे. कोई तौलिया नीचे नहीं पड़ा, कोई जुराबे बाहर नहीं है, फ्रिज में बोतलें लगी. बच्चे भी डरे डरे सब कुछ कर रहे हैं कि ये कभी भी फट पड़ेंगे. अपना आराम से काम करते रहो.
वो होनी चाहिए। और नई नई शादी की लड़ाई में चक्कर क्या होता है, नई नई शादी में जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो कोई तीसरा बंदा हमको देख लेना, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये लड़े हुए हैं, मतलब शक्लें लाल हैं, मुंह सूजे हुए हैं, बात नहीं कर रहे, पता चल। हमारा नहीं अब पता चलता, हम हो गए प्रोफेशनल। मतलब अब तो हम लड़ रहे हो, पूरा धुआंधार भी लड़ रहे हो ना, बीच में कोई घर की बेल बजा दे, हम नॉर्मल हो जाते हैं। और क्या हाल चाल है, बैठो 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 बैठो। We've come to a point where we started planning our fights. कि आज क्रिकेट मैच आना है, 4 घंटे शांति के चाहिए। चाय अकेले की बना लेता हूं। One more thing change. Like when you're newly married, the 3 magic words are I love you. Now our 3 magic words are I told you. जितना मजा आता है ना अपने पार्टनर को बताने में कि देख मैंने तो तेरे को कहा था, तुझे सुननी थोड़ा ना होती है, किसी चीज में नहीं। Like if we are going to the airport for example, me and my wife, and I am driving, and if my wife tells me कि सुन ये लंबा रास्ता है, दूसरा वाला ले ले, तो अगर मैं उसका बताया हुआ रास्ता ले लूं, तो मैं सारा रास्ता यही प्रे करता हूं कि भगवान करे फ्लाइट मिस हो जाए हमारी। पैसा तो आदमी कमाता रहता है लाइफ में, ये सुख तो कभी कभी मिलता है।